Then switch statement, as in previous class I have discussed about the switch statement. स्विच का मतलब क्या है ना, आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मल्टीपल केस स्टेटमेंट के साथ जाकर मैच होगा. So I have given an example. Suppose you are going to the restaurant and you are searching for a desired food. आपको जो फूड लेना है आप जाकर वहां पर सर्च करोगे तो आपको कौन सा फूड लेना है. तो जब तक आपका फूड नहीं मिलता है तब तक आप वो मेनू कार्ड में सर्च करते रहते हो till you are not getting your food. So once you get your food, then your searching is stop over there. Switch case is just like that. It take a variable value and check with the multiple केस स्टेटमेंट. तो सारा केस स्टेटमेंट के साथ वो मैच होगा. किसी भी एक केस स्टेटमेंट में अगर मैच हो जाता है देन एट दैट टाइमिंग द ब्रेक स्टेटमेंट इज अपीयर. So in each case the break statement is present. The break is used to stop the execution. So after getting your result, then there is no need to go ahead or to no need to go again for searching. So in that cases we are using the switch case. The variable that is used in a switch can only be integer. The variable that you are using in the switch can only be integer or convertible integer. It may be byte, it may be short, or it may be a char, string, or enum. You can have any number of case statement. एक switch case में आप जितना सारा चाहोगे case statement डाल सकते हो. But at last you have to use a default statement. वो mandatory भी नहीं है. So every case statement के बाद आपको break statement लिखना पड़ेगा. So when the break statement is reached, the switch terminate and flow of the control jumps to the next line. Not every case needs a break. तो सभी केस स्टेटमेंट के लिए आपको ब्रेक नहीं चाहिए. इफ नो ब्रेक अपीयर, अगर ब्रेक नहीं आता है, the flow of control will fall through the subsequent cases until the break is reached. A switch statement can have an optional default case which must appear when there is no matches in the case statement. केस स्टेटमेंट में अगर कोई भी मैचेस नहीं होता है तो आपका डिफॉल्ट केस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है. ओके, ये हो गया उसका थ्योरी. तो एक प्रोग्राम आपको फिर से वो रिपीट करके दिखा रहा हूं.
Just wait. एक सेकेंड रुको. Okay, so now I show one program of the switch case from the beginning. This is actually switch case program.
Now check how it is working. So int a is equals to 300. Suppose I pass here 100. int a is equals to 100. Then ये जो ए वेरिएबल का जो वेरिएबल है वो स्विच का जो पैरामीटर है उसके अंदर पास होगा। और याद रखना जो वैल्यू आप वेरिएबल में वेरिएबल का डाटा टाइप जो रहेगा, वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर है तो केस स्टेटमेंट में जो चेक होगा उसका जो केस का जो ऑप्शन रहेगा वो भी इंटीजर होगा। अगर ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग होगा तो केस में जो कंपैरिजन होगा वो एक कैरेक्टर और स्ट्रिंग ही पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर पास कर रहे हैं तो स्विच में इंटीजर वैल्यू है तो केस में भी आपका इंटीजर वैल्यू होगा। तो यहाँ पर केस 100, अगर हम 100 इंसर्ट करते हैं तो आपको दिखाएगा सेंचुरी। अगर हम 200 इंसर्ट करते हैं दिखाएगा डबल सेंचुरी। 100 और 200 के अलावा और कुछ जो नंबर है अगर आप पास करते हो वो दिखाएगा इट इज ए नॉट ए वैलिड एंट्री। तो नाउ आई रन द प्रोग्राम। Java C then Java Swiss. Today show you the result. Okay, so this showing you century. Okay, so if I pass here 200, then what it will display? That is match with the case 100. No, is your value is match with the case 200? Yes. So now it is showing you double century. So instead of 100 and 200, if you pass any other value, suppose I pass here 300. So it is showing you it is not a valid entry. Understood this program? Abhimanyu, Subham. Yes, sir. Next, I pass another example.
here we pass A, E, I, O, U. Means it will check the vowel and consonant. As you know that the A, E, I, O, U, these are called as the vowel, whether you passed in a uppercase and lowercase. So if anybody pass A, then it is showing you vowel. If anybody pass E, it is also showing you vowel. तो कोई अगर ए पास करता है वो वावेल शो करेगा, ई पास करता है वावेल शो करेगा. तो किसी भी नंबर यहाँ पर जो है अगर ए ई आई ओ यू होता है तो ये आपको वावेल शो करेगा. तो ये जो सारा चीज हम डिफाइन किए हैं वो सबके लिए एक ही आउटपुट आपको शो करेगा. मतलब ए ई आई ओ यू का वो एक ही आउटपुट दिखाएगा. तो इसलिए अगर आपको कॉमन चीज आपको डिस्प्ले कराना है तो हर एक केस स्टेटमेंट में आपका वो ये जो आउटपुट क्या होगा वो डिस्प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर 5, 6, 7 ये सबका आपका वैल्यू आपका स्टेटमेंट सेम पास करना है तो आपको ये वाला ए आई ओ यू ये सब सबके लिए एक ही चीज यहाँ पर पास करना है. उसके बाद ए ई आई ओ यू को छोड़कर और जितना सारा वैल्यू है किसी भी आप एक वैल्यू आप पास करोगे ये आपको कॉन्सोनेंट दिखाएगा. ठीक है. तो सारा जो 10 वैल्यू के लिए एक ही चीज वावेल और रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट पास किया. सो आई रन द फाइल नाउ. यहाँ पर मैंने वो पास किया हूं तभी आपका दिखाएगा इट इज ए वावेल. तो आपको दिखाया ओ इज ए वावेल क्योंकि यहाँ पर ये जो 10 स्टेटमेंट के लिए एक ही चीज दिखाएगा. लेकिन ए आई ओ यू को छोड़कर कोई भी मैं एक वैल्यू पास करता हूँ. सपोज यहाँ पर डी पास किया
तो डी इज ए कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई भी अदर लेटर आप पास कर रहे हो वो सब कॉन्सोनेंट्स हो करेगा। तो आज ये 10 स्टेटमेंट के लिए आपको एक ही सेम स्टेटमेंट पास करना है। तो इंडिविजुअल एक के स्टेटमेंट के लिए एक एक स्टेटमेंट पास नहीं करके हर एक स्टेटमेंट का एंड में जो कॉमन चीज डिस्प्ले करना है बस वही पास कर दो। समझ में आया प्रोग्राम? अभिमन्यु, शुभम? यस सर। The next program okay, so it is the one type of construct we are using. Next is we are using looping. So as you know that branching statement is two type. One is conditional statement that we pass conditional statement. Okay, वहां पर आप if else यूज कर सकते हो, स्विच केस यूज कर सकते हो, ओके, नेस्टेड if else यूज कर सकते हो। तो नाउ we go for looping. Looping, why it is used? When you want to execute same statement for more than one time. मतलब एक स्टेटमेंट को अगर आपको मोर देन वन टाइम रन करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द स्टेटमेंट you go for looping. Okay, so looping is used to execute one statement for more than one time.
and this looping is of two type. One is fixed loop, another is variable loop. So types, first is fixed loop, okay. Fixed loop means where the number of repetition is known to the user. मतलब यहाँ पर आपको पता होगा how many time the repetition is going on. सपोज मैं आपको बोलूंगा आप 1 से 10 तक ये लूपिंग चलाओ और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, तो here you know that for the 10 time you have to repeat a statement. But variable loop is what now where number of repetition is unknown. कितना बार रिपीटेशन होगा आपको भी पता नहीं. Like a patient is admitted in the hospital, so it is not fixed like when the disease or curable is increase, ये gradually increase करेगा. समझ में आया दोनों लूपिंग के बारे में? फिक्स लूप एंड वेरिएबल लूप. फिक्स लूप में क्या होता है, जो Yes, sir. नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको पता होता है. वेरिएबल लूप में जो नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको पता नहीं होता है, दैट इज ए वेरिएबल लूप. सो फॉर using this loop, and this loop is applied by using of three looping construct. Okay, तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या होगा? एक है फॉर लूप, नेक्स्ट इज while loop, next is do while loop. तो ये तीन तरीके का लूपिंग कंस्ट्रक्ट हम यूज करते हैं. एक होता है
फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, लूपिंग कंस्ट्रक्ट का मतलब है मतलब हाउ यू हैव टू अप्लाई द लूप, लूप को कैसे लिखा जाएगा, इसलिए हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। और जो लूपिंग है जैसे कि हम पढ़े वो दो तरीके का होता है, एक है फिक्स लूप, अनदर इज वेरिएबल लूप। फिक्स लूप में आपको पता चलता है कितना बार रिपीटेशन होगा, वेरिएबल लूप में पता नहीं चलता है कितना बार रिपीटेशन होगा। क्लियर? हेलो शुभम, अभिमन्यु, Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो पहले आते हैं हम फॉर लूप पर। तो फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या है? फर्स्ट इज फॉर इनिशियलाइजेशन, तो पहला रहेगा वैल्यू को इनिशियलाइज करो, उसके बाद उसका कंडीशन चेक करो। अगर आपका कंडीशन ट्रू रहता है तो फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होगा, फिर फॉर लूप में कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है देन आपका जो स्टेटमेंट है फॉर लूप में वो एग्जीक्यूट होगा। दैट इज कॉल्ड एज योर व्हाट, फॉर लूप का जो स्टेटमेंट होता है। ओके ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कल इसको प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। ओके ठीक है, चलो।